مجھے بات کرنی ہے دامیار سے، وہ 2 گھنٹے سے باہر بیٹھی ہوں۔ وہ اس کی سیکریٹری کو غصے سے دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن دامیار کی سیکریٹری اسے پوری طرح نظر انداز کر رہی تھی، جیسے اسے جانتی ہی نہ۔ لسن، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم مجھے اگنور کر رہی ہو، تمہاری اتنی اوقات؟ وہ غصے سے اسے گھور کر بولی تو دامیار کی سیکریٹری نے نگاہیں اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ میری اوقات کو چھوڑیے، آپ اپنی اوقات کو دیکھیے۔ سنا ہے آپ کے سارے پروجیکٹس آپ سے چھین لیے گئے ہیں، یہاں تک کہ جس کمپنی نے آپ کے ساتھ کام کرنے کا معاہدہ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، آپ کے ان پروفیشنل ہونے کی وجہ سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ اپنا کوئی کام ٹھیک سے کر نہیں سکتی، آپ اپنی غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے کیا ہو گئی ہیں اور مجھے میری اوقات بتا رہی ہیں۔ محترمہ میری اوقات آپ سے کئی درجے بہتر ہے، اس کی سیکریٹری بول رہی تھی، جبکہ وہ غصے سے اسے نظر انداز کرتے سیدھی دامیار کے آفس میں گھسی، جبکہ اس کی سیکریٹری اسے منع کرنے کی بجائے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب دامیار خود ہی اسے انسلٹ کر کے باہر نکال دے گا آفس سے۔ مسٹر دامیار شاہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم اس طرح مجھے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تم نے میرے سارے اپ کمنگ پروجیکٹس خرید لیے اور وہاں پر ماڈل چینج کر دی۔ میرے معاہدے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ، بیوٹی کریم پروڈکٹ میں مجھے 2 سال کے لیے ہائر کیا گیا تھا، لیکن تم نے میرا وہ معاہدہ بھی خراب کر دیا، یہاں تک کہ تم میرے چھوٹے سے چھوٹے سارے معاہدے خرید کر ختم کروا چکے ہو۔ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسے؟ میرا سارا کریئر تباہ کر رہے ہو تم۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے بولی، جبکہ دامیار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی کرسی جھولتے اس کے دھواں دھار چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ارے سپر ڈوپر ماڈل زیبائش خان کو یہاں آنے کا موقع کیسے مل گیا؟ بیٹھیے میم، میں آپ کے لیے کچھ چائے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ کیا ہوا، کہیں آپ کے سارے ماڈلنگ پروجیکٹس تو کینسل نہیں ہو گئے؟ اتنا غصہ، اتنی ناراضگی، لگتا ہے چوٹ سیدھی دل پر لگی ہے۔ ویسے زران شاہ کو میرا راز بتانے گئی تھی، مجھے تو لگا کہ زران شاہ تمہیں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ دے دے گا، لیکن نہیں، یہاں تو الٹا ہو گیا نا، تمہیں زران شاہ نے کچھ نہیں دیا اور نہ ہی اب تمہیں کہیں اور سے کچھ ملے گا۔ خیر، یہ تو شروعات ہے، ابھی وقت پڑا ہے تمہیں برباد ہونے میں، تیار ہو جاؤ۔ دامیار شاہ سے پنگا لینے کا انجام بھگتنے کے لیے بہت بڑا انعام دوں گا تمہیں۔ زران شاہ کو میرا راز بتانے کا؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ زیبائش کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ دامیار شاہ دیکھو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اندازہ ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن تم نے میرا سارا کریئر خراب کر دیا۔ دیکھو دامیار شاہ، اگر تم چاہو تو میں زران سے جا کر کہہ دوں گی کہ وہ سب میری غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دوں گی کہ اس شادی میں ایزا کی مرضی شامل تھی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ دامیار شاہ پلیز میرے ساتھ اس طرح سے مت کرو۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی، جبکہ دامیار اٹھ کر کھڑا ہوتا کمرے میں موجود بزر بجا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک یونیفارم میں موجود گارڈ اس کے سامنے تھا۔ یس سر، وہ احترام سے اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ دامیار ہلکا سا مسکرایا، ان محترمہ کو باہر کا راستہ دکھانا ہے اور اس انداز میں دکھانا ہے کہ یہ دوبارہ یہاں تشریف نہ لا سکیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے گارڈ سے اپنے کوٹ کا اگلا بٹن بند کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے دور تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی، وہ بار بار اس سے سوری بول رہی تھی، بار بار اس سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن دامیار نظر انداز کر گیا تھا مکمل طور پر اسے۔ اس گھر میں اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ شنایا کو صبح سب کچھ پتہ چلا تھا، عروج کے تایا اور تائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی، رات کو اتنا ہنگامہ ہوا اور اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ اسے تو جیسے جھٹکا لگا یہ سب کچھ جان کر کہ کل ان کے گھر میں آرام سے ہر طرف گھومنے پھرنے والی عورت آج جیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے صبح ہر طرف نگاہیں گھمائی تھی، لیکن وہ اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے زوری سے باتوں باتوں میں اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوگی، اسے چھوڑو تم۔ یہ بات اس کے لیے کافی زیادہ حیران کن تھی، لیکن اس بارے میں اس نے مزید کسی سے بھی پوچھا نہیں تھا۔ اور پھر شام کو جب زبر گھر آیا تو اس کے کمرے میں آتے ہی اس کی تفتیش شروع ہو گئی۔ تو رات کو اگر تمہاری نیندیں ہی پوری نہ ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ اتنے مزے کا واقعہ ہوا تھا، وہ ڈرامے کر رہی تھی، قسم سے مزہ آ گیا، اور تم آرام سے سو رہی تھی، وہ سنسنی خیز انداز میں اسے بیڈ کے پاس بیٹھا بتانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ تو مجھے بھی جگا لیتے نا، میں نے کبھی کسی عورت کو ڈرامے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مایوسی سے بولی، جبکہ زبر نے
अपने बाजू का हिसार उसके गिर्द बनाया। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो उससे दूर होते हुए बोली तो ज़बर ने उसे घूरा। मेरी वजह से क्या हुआ है? तुम खुद ही रात को घोड़े बेचकर सो रही थी। वो सारी बात उस पर डालने लगा। मैं घोड़े बेचकर सो रही थी तो आप मुझे जगा लेते ना। वैसे भी आपकी वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। आपको ना हर वक्त रोमांस ही सूझता है, और ना ही आप मेरे पहले नींद खराब करते और ना ही मैं ड्रामा मिस करती। सारा ड्रामा मिस करवा दिया मुझसे। सारा इल्ज़ाम उस पर लगाते वो बोली तो ज़बर मुस्कुराया। चलो यार, सारी गलती मेरी से। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो उसे अपने करीब करते हुए बोला था। अल्लाह अल्लाह ज़बर, आप सिर्फ चेंज करने आए थे। उठें चलें, बाहर इज़ा आई हुई है, अभी बेचारी चली जाएगी, उसके बाद पता नहीं कब आएगी। इतनी मज़े मज़े की तस्वीरें दिखा रही थी वो मुझे। मैं सिर्फ आपको कपड़े देने के लिए आई थी, सारा वक्त आपके साथ बर्बाद नहीं करना मुझे। वो उसे जान छुड़ाते बाहर भाग निकली, जबकि ज़बर अपने कपड़ों के बहाने उसे कमरे में ले आया था। उसके वापस बाहर चले जाने पर खुद भी उठकर बाहर ही आ गया। वैसे भी अब उसकी बीवी रात से पहले तो उसके सामने आने वाली थी नहीं। इज़ा यहाँ है। ये सुनकर इबादत भी उसके पास आ गई थी। दोनों मिलकर कब से बातें करने में मसरूफ़ थे। इबादत के आने के बाद उनकी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसे वो सब बता रही थी कि किस तरह से वो लोग वहाँ इंजॉय करके आए थे। उसे तस्वीरें दिखा रही थी। अपना नया फ़ोन भी उसे दिखा चुकी थी। हाँ, लेकिन उसने रानिया और उसके शोहर के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि ये सारा मामला यकीनन उन सबको दामियार की ओर खिलाफ कर सकता था, और वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले दामियार के खिलाफ जाएं। पहले ही वो उसे दामियार से अलग होने के मशवरे दे रहे थे, और वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दामियार की इमेज और ख़राब हो उन लोगों की नज़र में। इसलिए सारा वाक़या उसने किसी को भी नहीं बताया था। जबकि उसके हनीमून को, इस छोटे से टाइम पीरियड को, वो चारों बैठी सुन रही थी, और उन सब की नज़र में दामियार एक बहुत अच्छा शौहर बन चुका था। लेकिन वो अपने भाइयों को दामियार पर एतबार करने के लिए नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो चारों ही दामियार के खिलाफ थे। यहाँ तक कि अब तो बाबा और चाचा भी इस रिश्ते को रखने के हक़ में नहीं थे। वो लोग अपनी बेटी की बेहतरी चाहते थे, लेकिन अब वो उन्हें कैसे बताती कि दामियार ही उसकी बेहतरी है, क्योंकि वो दामियार के साथ अपनी ज़िंदगी को कबूल कर चुकी है और आगे उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। पहले तो सिर्फ शहीर, ज़बर और बारिक थे, अब ज़रान भी यहाँ आकर वही बातें कह रहा था। उसका भी यही कहना था कि वो लोग दामियार के खिलाफ केस करेंगे और खुला के ज़रिए उन दोनों को अलग करेंगे। वो भाई थे, अपनी बहन की बेहतरी चाहते थे, लेकिन अब इज़ा ने उन्हें ये बताया कि उसकी बेहतरी दामियार के साथ है, उससे अलग होकर नहीं। हाँ, वो दामियार की मोहब्बतों की आदी होती जा रही थी। उसका दीवानापन और बेकरारियाँ उसे अच्छी लगने लगी थी। हाँ, अगर वो औरत होने के नाते उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करती तो शायद दामियार के साथ कभी आगे ना बढ़ पाती, लेकिन उसने एक बीवी होने के नाते दामियार को सीधी राह दिखाने का अहद लिया था, और वो ये अहद अपने खुदा से कर चुकी थी, और अब अपने इस अहद से पीछे नहीं हट सकती थी। हाँ, लेकिन शायद उसके भाई ये बात कभी नहीं समझ सकते थे। शाम के वक्त वो इज़ा को लेने आ चुका था। घर में तकरीबन सब लोग ही घर पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसकी मौजूदगी का सोचकर बाहर नहीं निकला था। अम्मी जान ने उसके लिए स्पेशल उसकी पसंद की बिरयानी बनाई थी, लेकिन जब कोई भी उसके साथ खाना खाने के लिए बाहर नहीं निकला तो उसने बड़े एहतराम से मना कर दिया। अरे नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैंने लंच काफ़ी देर से किया था, इसलिए। इज़ा, तुमने खाना खा लिया? उसने इज़ा की तरफ देखते हुए पूछा था। दामियार के आने का कोई पता नहीं था, इसलिए ज़रान और ज़बर ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाकर खिलाया था। हाँ, मैंने तो खा लिया, लेकिन स्पेशली आपके लिए बनाया ये। वो उसे देखते हुए बताने लगी। इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा, आपके हाथ का खाना ज़रूर खाऊँगा। फ़िलहाल जाना है, वो दरअसल एक ऑनलाइन मीटिंग भी है। वो माज़रत करते हुए उठा, जबकि उसके उठने का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। वो भी उसके साथ ही उठ खड़ी हुई। फिर अम्मी, फिर मैं चलती हूँ। वो भी उसके साथ ही उठ गई थी, जबकि इबादत ने उसके जाने का बताकर बाकी सबको बाहर बुला लिया। दामियार आगे नहीं बढ़ा था। अगर वो लोग खुद ही कोई लचक नहीं दिखा रहे थे तो भी उसका कोई इरादा नहीं था झुकने का। बेशक वो उन लोगों की बहन थी, लेकिन फिर भी अकड़ तो दामियार शाह में भी बहुत थी, और वो हरगिज़ उन लोगों के सामने नहीं झुकने वाला था। वो लोग बाहर निकले तो दामियार ने अपने कदम घर से बाहर की तरफ उठा लिए थे। वो सब लोग इज़ा से मिलने लगे, जबकि दामियार घर के बाहर खड़ा उसके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर कब आओगी? बारिक ने उसे अपने साथ लगाते हुए पूछा। शायद अब कभी ना आऊँ, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो वो हैरत से उसे देखने लगा, जबकि उसके जवाब पर वो तीनों भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? बारिक ने गुस्से से पूछा। साफ, बहुत साफ और वाज़ेह मतलब है बारिक भाई। जहाँ मेरे शोहर की इज्जत नहीं, वहाँ मैं कभी नहीं आना चाहूँगी। अगर मेरे मायके में मेरे शोहर की कोई कदर व कीमत नहीं है तो ऐसी जगह मैं नहीं आना चाहूँगी। अब मैं वहीं जाऊँगी जहाँ मेरे शोहर की इज्जत है। वो उन चारों से मिल रही थी, जबकि
जबकि इतना तो वो भी समझ चुके थे कि दामियार को नज़रअंदाज करना उनकी बहन को कितना बुरा लगा है। इज़ा, तुम उस इंसान के लिए अपने भाइयों से इस तरह बात करोगी? वो काफ़ी नाराज़गी से गोया हुआ। आप मेरी खातिर मेरे शोहर को इज्जत नहीं दे सकते। आप मेरी खातिर मेरे शोहर को इज्जत नहीं दे सकते और आप ये भी चाहते हैं कि मैं अपने शोहर की बेइज्जती भुलाकर आप लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहूं। माफ़ कीजिएगा बारीक भैया, जहाँ लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे वहाँ मेरी भाभी ज़ोरिश कभी नहीं जाएगी। मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि मेरे शोहर के साथ आप लोगों का किस तरह का रिलेशनशिप है, लेकिन मेरी खातिर आप लोगों को मेरे शोहर को कबूल करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ नहीं आऊँगी। वो आप लोगों की नज़रों में लाख बुरा सही, लेकिन वो आप लोगों की बहन का शोहर है। इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। अब मैं यहाँ वापस तब आऊँगी जब आप लोग मेरे शोहर को इज्जत देंगे। खुदा हाफिज़। वो अपनी बात मुकम्मल करती घर से निकल गई, जबकि वो चारों एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी इस हरकत ने यकीनन सबको गुस्सा दिलाया था। हाँ, लेकिन घर आए मेहमान के साथ सलूक तो उन लोगों ने भी अच्छा नहीं रखा था। उनकी नज़र के सामने इज़ा घर के बाहर निकल गई, जबकि दामियार वहीं खड़े थोड़े फासले पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाजू में अपनी बाहें डालते उसने उसके बाजू को मजबूती से थामा और मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा। दामियार ने खुद उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जबकि थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। देखो बारिक, जो बात गलत है वो गलत है। तुम लोग अपनी पुरानी चीज़ों को दिमाग से निकाल ही नहीं रहे। जिसके साथ गलत हुआ वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और तुम लोग वहीं के वहीं रुके हुए हो। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहती कि तुम दामियार को सर पर बिठा लो, लेकिन इतना तो समझो कि वो तुम्हारी बहन का शोहर है। अगर तुम लोग उसे नज़रअंदाज करोगे, उसे अहमियत नहीं दोगे, तो उसका सीधा असर तुम लोगों की बहन की ज़िंदगी पर पड़ेगा। पहले के मामला जो भी थे और जैसे भी थे, लेकिन अब तुम लोगों को ईज़ा को देखना होगा। वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रही है, वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को किस तरह से देख रही है। वो दामियार के साथ रहने का फ़ैसला कर चुकी है और अब वो ये फ़ैसला नहीं बदलेगी अपना। उसे अपनी ज़िंदगी दामियार के साथ ही गुजारनी है। इसलिए बेहतर है कि तुम लोग भी अब नॉर्मल हो जाओ। दामियार को ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत अहमियत तो दो। उसके लिए ना सही, अपनी बहन की खातिर थोड़ी सी लचक लाओ अपने रवैयों में, अपने लहजों में। देखो बेटा, तुम्हारे चाचा और बाबा भी तो कमरे से बाहर निकले ना। उसके लिए बेशक उन्होंने दामियार से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसे एहसास तो दिलाया ना कि वो उनकी बेटी का शोहर है, इकलौती बहन है वो तुम लोगों की। उसकी खातिर उसके शोहर को इस घर में इज्जत देना तुम सब लोगों का फ़र्ज़ है। अम्मी उन चारों की क्लास ले रही थी, जबकि वो खामोशी से बैठे उन्हें सुन रहे थे। अम्मी, आपको अंदाज़ा भी है इज़ा क्या कह रही थी? उस इंसान की खातिर वो हमें छोड़ने की बात कर रही थी और आप चाहती हैं हम उसे इज्जत दें। वो हमें हमारी बहन से अलग कर रहा है और आप वो कुछ नहीं कर रहा। ज़रान, जो कर रहे हो तुम लोग कर रहे हो। अपनी गलतियाँ उस पर डालना बंद करो। बहनोई से किस तरह बात की जाती है, इतना सलीका नहीं है तुम लोगों को। वो लाख गलत सही, लेकिन इस मामले में तुम गलत हो। अगर तुम लोगों की बहन को दामियार के साथ ज़िंदगी गुजारने में कोई मसला नहीं, तो तुम लोगों को क्या मसला है आखिर? आखिर क्यों नहीं सुकून से जीने दे रहे हो तुम लोग उसे? अम्मी, हम उसके भाई हैं, उसके दुश्मन नहीं हैं। हम उसे ठीक मशवरा दे रहे हैं दामियार से अलैदगी का। उस इंसान की शक्ल देखना गवारा नहीं है हमें, और आप चाहती हैं हम उसे इज्जत दें। ज़बर उठकर खड़ा हो गया था। लहजे में काफ़ी सख्ती थी, लेकिन वो ये भी नहीं भूला था कि उसके सामने उसकी अपनी माँ बैठी है, जिसके सामने वो ना तो आवाज़ बुलंद कर सकता है और ना ही बदतमीज़ी का मुजाहरा कर सकता है। यहाँ पर मसला तुम लोग नहीं हो, इज़ा है। तुम लोगों की बहन है। अपनी बहन की खातिर तुम उसके शोहर को इज्जत नहीं दे सकते और तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी तुम्हारा ताल्लुक मजबूत रहे। लेकिन ज़रा इस बात को भी तो सोचो, कल को अगर दामियार इस बात पर कोई इशू उठाए तो क्या कर लोगे तुम लोग? अगर आज घर जाकर दामियार इस बात पर एतराज़ उठाए, जो बदतमीज़ी तुम लोगों ने उसके साथ किया, तुम लोगों की बहन कितनी शर्मिंदा होगी उस इंसान के सामने। अंदाज़ा लगा सकते हो तुम लोग? नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम लोगों को तो सिर्फ अपनी अना प्यारी है ना। तुम लोगों की नाक नीची ना हो जाए कहीं उसे ठीक से बात कर लेने में। अम्मी समझा समझा कर थक हार कर कमरे से अब बाहर निकल चुकी थी, जबकि वो चारों एक दूसरे को देखते रह गए। वो चारों एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते थे दामियार के हवाले से। भाई, अब ये मामला हद से आगे बढ़ रहा है। मैं उस इंसान को इज़ा के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़बर गुस्से से कहता कमरे से निकल गया था, जबकि बाकी तीनों भी वहाँ से उठ गए।